Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most beneficent, the merciful, creator, sustainer, and owner of the whole universe. First of all, I will share the screen with you people. This is chapter number 4 that we are discussing in the last session. So this is the chapter number 4 here. Hopefully you see the slides of chapter number 4 on your screen. We have discussed chapter number 4 in the last section. Some slides are there. First of all, I will start this lecture with you guys. So I have some basic concept of about the chapter number 4 that we have discussed in chapter number 1 and chapter number 3. This is our chapter number 4. That is related to, I will show the slide on whole screen. So no, this is our fourth chapter that is related to the ECRM, Customer Relationship Management. Before this, we discussed this chapter, and in the last session we discussed some concepts here. Now I will give some overview from the previous chapter so that you can understand these concepts with the full length. We discussed in the chapter number 3 the definition of the CRM, Customer Relationship Manager, what it is. According to the definition, according to the Judith, CRM is the strategic use of information, technology, people, and process to manage the customer's relationship with your company across whole customer life cycle. So it is to be noted that this definition is our working definition. In the last class, in offline teaching, I have discussed this definition and put the I and T together and 2P were together so that you can remember this definition. Again, CRM is a strategic use of information, technology, people, and process to manage the customer relationship with your company across whole customer life cycle. And we have already discussed the definition of customer life cycle. This is the total duration of the company. That's the total duration of the customer that attached with the company with the positive relationships, with the positive experiences. And this definition we use in this book. और इसी डेफिनेशन पे हम फोकस करेंगे सारे चैप्टर्स पे. ये हमारी वर्किंग डेफिनेशन है इस बुक के लिए और हमारे फर्दर कॉन्सेप्ट्स के लिए कि सीआरएम हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, ITPP. हमें कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड प्रोसेस का स्ट्रेटेजिक यूज है. तो इन फर्स्ट चैप्टर हमने इंटरनेट की द न्यू मार्केट प्लेस एंड इट्स इम्पैक्ट, 2 हमने टॉपिक कवर किए थे इन चैप्टर नंबर फर्स्ट. वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1 द न्यू मार्केट प्लेस. आप उसमें जाएंगे आपको ये हेडिंग मिलेगी द न्यू ई मार्केट प्लेस. एक्चुअली इंटरनेट के थ्रू जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें दैट इज ई मार्केट प्लेस यूजिंग इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसको हम कह रहे हैं ई मार्केट प्लेस. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटरनेट के थ्रू हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और इसमें द बेसिक कॉन्सेप्ट एक स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, बट द बेसिक स्टिल काउंट. हमारे पास बेसिक्स वही होंगी बिजनेस की, और इंटरनेट हमारे पास एक मीडियम है. जैसे हमने कस्टमर टच पॉइंट्स को डिस्कस किया था, फर्दर मैं इसको डिस्कस करूंगा. तो ये पिछले हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप ये चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें.
तो इसमें हमारे पास ई मार्केट प्लेस में हमने 5 चीजें पढ़ी थी: असेस, कंट्रोल, स्पीड, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑटोमेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसके इम्पैक्ट पढ़े थे। लेकिन हम एक बात डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इंटरनेट का एक डिलेमा है, वो ये, इट डज नॉट मीन दैट एन इंटरनेट एक्सपीरियंस हैज टू फील कोल्ड और मैकेनिकल। ये एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, क्लिफोर्ड नास, तो उन्होंने ये बात कही है, वो कहते हैं कि द पीपल एक्चुअली रिएक्ट टू द कंप्यूटर एज इफ दे वर ह्यूमन। लोग कंप्यूटर को समझ रहे हैं कि ये ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट करेगा, बट कंप्यूटर डज नॉट येट हैव द ह्यूमन कैपेसिटी टू मेक इंटेलेक्चुअल लीप्स और कनेक्ट इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियसली लिंक्ड। ये बात कही जा रही है, और ये बात कही जा रही है कि कंप्यूटर्स आर लॉजिकल बट नॉट इंटेलिजेंट। कंप्यूटर लॉजिक्स पे बेस करता है, जैसे आप लॉजिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे कि लॉजिक्स ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती, ये इंटेलिजेंस नहीं होती। लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हों, लेकिन इसमें ये कैपेसिटी नहीं है। ये इंटरनेट का एक डिलेमा है। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, मीन न्यू सेट ऑफ टूल फॉर इंटरेक्शन, for interacting with customer. It is not a new way of life or even a new business function, but it is a new touch point or medium with some new challenges and opportunities. तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इंटरनेट हमारे पास एक वे ऑफ द इंटरेक्शन है, और ये हमें एक अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस भी प्रोवाइड करता है, और हम इसको एज ए मीडियम, जैसे हमने कस्टमर टच पॉइंट्स की बात की थी, वो मीडियम एंड मीन्स हैं through which we we interact with our customers। ये बात भी समझने की है। और इसके बाद one of the major changes in the internet has brought to the marketplace is putting more information and control in the hand of the customer। इंटरनेट ने हमें ये भी एक चीज प्रोवाइड की है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमें पिछले चैप्टर से लिंक करने थे आपके साथ कि इंटरनेट की क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हर्डल्स हैं, इंटरनेट हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट का हमारा क्या डिलेमा है। तो इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, मर्जिंग सीआरएम एंड द इंटरनेट एंड सीआरएम ऑन एंड ऑफ द इंटरनेट, रिकॉग्नाइजिंग बैरियर टू द इंटरनेट अडॉप्शन। ये 3 चीजें हैं। और लास्ट सेक्शन में हमने, लास्ट डिस्कशन में, लास्ट क्लास में हमने ये 2 टॉपिक डिस्कस किए थे, मर्जिंग सीआरएम एंड द इंटरनेट, और इसकी फर्दर 2 हेडिंग्स हैं, न्यू कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड व्हाई सीआरएम इज सो इम्पोर्टेंट। ये हमारे पास 2 चीजें हैं। और न्यू कस्टमर एक्सपेक्टेशन में हमारे पास लास्ट टाइम भी हमने इनको डिस्कस किया था कि हमारे पास असेस, कंट्रोल, स्पीड, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट थे मर्जिंग सीआरएम एंड द इंटरनेट में। एज वी हैव डिस्कस, इंटरनेट इज अ मेजर सोर्स ऑफ चेंज। चेंज किस चीज में? चेंज इन मार्केट प्लेस एंड इम्पैक्ट ऑन दोज चेंजेस ऑन बिजनेस सक्सेस। व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट? ये हम पहले चैप्टर में कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस हैज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर नंबर 1 अंडर द वैल्यू डिसिप्लिन मॉडल। हमने चैप्टर नंबर 1 में मॉडल, वैल्यू डिसिप्लिन मॉडल में डिस्कस किया था कि 3 चीजें हैं, ऑपरेशनल एक्सीलेंसी है, प्रोडक्ट लीडरशिप है, कस्टमर इंटीमेसी है। ऑपरेशनल एक्सीलेंसी में हमने सिंगल लाइन में डिफाइन किया था कि बेस्ट टोटल कॉस्ट। अगर हम कहें तो हम ऑपरेशनल एक्सीलेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट लीडरशिप को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं बेस्ट टोटल प्रोडक्ट। और कस्टमर इंटीमेसी को हम डिस्कस करना चाहे तो हम ये कहेंगे कि बेस्ट टोटल सॉल्यूशन। ये इनका सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन है, ऑपरेशनल एक्सीलेंसी, प्रोडक्ट लीडरशिप एंड कस्टमर इंटीमेसी। और कस्टमर एक्सपेक्टेशन से कुछ मैं आपको वजाहत कर दूं कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन में हमारे पास, पहले तो चलो ये डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है। ऑफ कोर्स इंटरनेट हैड इंक्रीज कस्टमर एक्सपेक्टेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेस, control, speed,
globalization and automation. If customers are more in control, then loyalty is even more critical. और मुझे एक हदीस याद आ रही है इसके ज़िम्न में कि एक्सपेक्टेशन में एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी की जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी उम्मीद और उमंग हैं जो कहाँ जा रही हैं, ये मैं स्क्रीन शेयर से आपको एनोटेशन लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका। मैथमेटिकली इसको ड्रा करके समझाया गया कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, चूंकि हमने पहले एक्सपेक्टेशन और रियलिटी भी डिस्कस की थी चैप्टर्स में। चलें यहाँ मैं ये फिगर ड्रा करता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस हमारी एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को और उसकी उम्मीदों को समझाने के लिए एक 4 कोनों वाली ये फिगर ड्रा की और ये कहा कि ये हमारी ज़िंदगी है, और मुहद्दिसीन ने कुछ इसी तरह से इसके फिगर को शो किया है। ये हमारी मौत की एक लाइन है चारों तरफ से जो हमारी ज़िंदगी को घेरे हुए है। ये हमारी एक जो दरमियान वाली लाइन है, उन्होंने फरमाया कि ये आदमी की ज़िंदगी है, और ज़िंदगी की लाइन को मौत ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, और ये जो फिर छोटी-छोटी लाइनें इसके गिरदा में ड्रा की हैं और इस बात की तरफ इशारा किया है कि ज़िंदगी को हवादस ने, परेशानियों ने, तफक्कुरात ने और चीज़ों ने, मुख्तलिफ हवादस ने इसको घेरा हुआ है। ये आदमी की ज़िंदगी की जो लाइन है इसको हवादस ने घेरा हुआ है, और फिर उसके बाद मौत का एक चारों तरफ से है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी की लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है मौत की बाउंड्री से, कि ये आदमी की एक्सपेक्टेशंस हैं, ये आदमी की उम्मीद है जो इसकी ज़िंदगी मौत की लाइन से भी आगे की बढ़ी हुई है। और एक दफ़ा फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को गर्दन के ऊपर रखा और दूसरे हाथ को यूं दूर फैलाकर कहा कि ये आदमी की मौत है जो आदमी के सर पर है, और ये उसका जो अगला हाथ बढ़ा हुआ है ये उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इस ज़िम्न में ये बात ज़िम्नन आ गई कि एक्सपेक्टेशन जो है आदमी की और कस्टमर्स की और बहुत आगे तक चली जा चुकी होती हैं, और हमारी रियलिटी होती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। रियलिटी तो हमारी इस बाउंड्री के अंदर है, और हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बहुत दूर तक एक्ससीड कर चुकी होती है। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट हम एक्सपेक्टेशन से डिस्कस कर रहे थे कि इसमें रियलिटी, इनको भी हम सिंगल लाइन में डिफाइन करते हैं, गो कि हम इसको पहले चैप्टर में डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए चूंकि ये टॉपिक इसमें भी डिस्कस किया गया है और कुछ मैंने हैंडआउट्स भी प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, वो पीडीएफ की फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको भी पढ़ के अंडरस्टैंड कर लें कि चैप्टर एक्चुअली है क्या, और सीआरएम और इंटरनेट के और न्यू कस्टमर एक्सपेक्टेशन और ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको समझने में आसानी होगी। इसको मैंने चैप्टर को लिंक किया है विद चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट इसके यूज हुए हैं। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में भी हमने कुछ इसके साथ आपके साथ शेयर किया था, उसको भी इसके साथ लिंक किया है। ये 4 चैप्टर्स हैं, हमने इनको इंटरलिंक भी किया है और यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था, इफ कस्टमर आर मोर इन कंट्रोल देन लॉयल्टी इज इवन मोर क्रिटिकल। और लॉयल्टी क्या है, लॉयल्टी को हमने मुख्तलिफ क्लासेस में डिस्कस किया है, और एक दफ़ा हमने ये कहा था कि अगर सिंपली हम ये कहें कि लॉयल्टी क्या है तो हम यूँ कह रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, या आप यूँ कहें लॉयल्टी इज बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, या आप इसको यूँ कहें द लॉयल्टी इज बिल्ड ऑन अ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। क्योंकि हमने इसकी जो टिपिकल डेफिनेशन ली थी कि इट इज अ बिहेवियर ऑफ द कस्टमर और कंज्यूमर that is based on the positive experiences। ये कस्टमर के बिहेवियर हैं जो बेस करते हैं ऑन द पॉजिटिव एक्सपीरियंस, ये हमारी लॉयल्टी है। तो देन इंटरनेट में हमने कुछ और भी बातें आपके सामने रखनी है कि इंटरनेट हैज एलिमिनेटेड मच ऑफ द डायरेक्ट एम्प्लॉय कस्टमर इंटरेक्शन। कंपनी मस्ट फाइंड डिफरेंट वेज और मेथड और मैकेनिज्म ऑफ बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप ऑन द वेब। ये मैंने हैंडआउट्स पर लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए, तो इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। तो सिंगल लाइन आप असेस, कंट्रोल, स्पीड, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑटोमेशन को रिवाइज करते हैं इस चैप्टर के सिनेरियो में, और फर्स्ट चैप्टर में जो आप डिस्कस किया है
उसके साथ आप इसको लिंक करके दोनों को इकट्ठा पढ़िएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन आपको यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ये असेस जो है वो असेस मीन गेट इंफॉर्मेशन व्हेनेवर और वेयर एवर, या आप इसको यूं कहें गेट इंफॉर्मेशन एनी टाइम एनीवेयर। ये हमारी एसएस की एक सिंपल डेफिनेशन है उसको समझने के लिए। और इसी तरह कंट्रोल है हमारे पास, व्हेन एंड हाउ कस्टमर वांट टू डू बिजनेस, ये हमारे पास कंट्रोल की बात है। आप यूं करें कि इंक्रीज्ड कंट्रोल, कस्टमर अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर आर एक्सपेक्टिंग increase control over the information, over the product, over the services। तो थर्ड वन हमारे पास स्पीड है। स्पीड का मतलब ये है कस्टमर एक्सपेक्ट ट्रांजैक्शन विदाउट नो टाइम, या आप यूं कह लें कि ये कस्टमर की नीड है, रिक्वायरमेंट है, या अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। हमारा कंट्रोल है, हमारी स्पीड जो है, कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है ट्रांजैक्शन विद इन नो टाइम। ये इसकी सिंपल आप उसको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो बुक में दोनों चैप्टर्स में उसको मिला के पढ़ेंगे तो आपको दोनों टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको एक हद तक सही मिल जाएगी। तो फोर्थ वन हमारे पास ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि बाउंड्रीज को एलिमिनेट कर दिया गया है अब बिजनेस में, या यूं कह रहे हैं कि इंटरनेट एलिमिनेटेड कंट्री बाउंड्रीज। और आप यूं कहें इसके एक्सप्लेनेशन में, वर्ल्ड इज एन ओपन मार्केट फॉर एवरीवन। और ऑटोमेशन में हमने तो उसको पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि ऑटोमेशन क्या है। एक क्यूरी भी आप लोगों से पूछी थी कि आपको कुछ याद हो तो आप भी कुछ ऑटोमेशन में कहें, या आप इसको दोबारा समझिए कि इंटरनेट एलिमिनेटेड पीपल कंपोनेंट को उसने एलिमिनेट किया है। और या आप उसको पहले चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया यूं कहें कि ऑटोमेशन हाउ क्विकली, easily, efficiently and accurately commerce can take place। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी चाहिए जो जुडिथ ने भी इस बात में कही है कि वन साइज फिट फॉर ऑल सीआरएम प्रोग्राम ऐसा नहीं हो सकता कि हर कंपनी के लिए एक ही सीआरएम की स्ट्रेटजी आप हर जगह पे उसको फिट कर दें। हैव टू डिसाइड व्हाट्स राइट फॉर यू, व्हाट्स राइट फॉर योर कंपनी। तो इसलिए हमने एक एमफिल में कोर्स लिया था CSIM, ये हमारा एमफिल का कोर्स था नॉर्मल यूनिवर्सिटी में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि सीआरएम कस्टमर स्ट्रेटेजी जो है वो टेलर मेड है, ये कुछ जेनेरिक नहीं है कि कंपनी को हम कहें, हर कंपनी को ये बात कहें कि आपके पास ये एक सीआरएम की पॉलिसी है, प्रोग्राम है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें। तो वन साइज फिट फॉर ऑल ये नहीं हो सकता। हाउ टू डिसाइड व्हाट राइट टू फॉर योर कंपनी, ये आपने डिसाइड करना है। नॉट ऑल दीज चेंजेस, अब ये चेंजेस जो हैं न्यू कस्टमर एक्सपेक्टेशन में, जो ये चेंजेस हैं ये हर कंपनी के लिए एक ही डिग्री पर अफेक्ट नहीं करती, या आप उसको यूं कहें नॉट ऑल दीज चेंजेस अफेक्ट ऑल कंपनी टू द सेम डिग्री। सपोज फॉर एग्जांपल, आप इसकी एग्जांपल लीजिए कि स्मॉल कंपनीज दैट टारगेट अ पर्टिकुलर कंट्री मार्केट may not be heavily affected by the globalization। जो कंपनी पूरी दुनिया में और बहुत सारे ममालिक को टच नहीं कर रही तो उसको ग्लोबलाइजेशन इतना अफेक्ट नहीं करती। तो इसलिए आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि सीआरएम प्रोग्राम हर कंपनी के लिए सिमिलर और सेम स्ट्रेटजीज पर नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट हमने इसको डिस्कस किया, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीआरएम। हम इसको भी हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको दोबारा समझाने की कोशिश की है ताकि सारा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाए। और चैप्टर नंबर 4 को लिंक किया है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के साथ, आप उनको भी साथ साथ रखिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन भी हो। आपने थर्ड चैप्टर की समरी भी बनाई है, तो हम नेक्स्ट भी हम टास्क देखते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सीआरएम क्या है हमारे पास? टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, इस पर हम कुछ बात कर चुके हैं और कुछ पिछले सेशन में हमने की थी। और सेकंड वन हमारे पास टू मीट कंपेटिटर्स इनिशिएटिव्स। और थर्ड वन हमारे पास फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ कोर्स हम विद रिस्पेक्ट टू द सीआरएम, विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ये बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इंटरनेट इज एन कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम फॉर डिलीवरिंग कस्टमर इंटरेक्शन। Employees are usually expensive element for most companies, and automating element of sale, order taking and customer service and support make great economic sense।
हम ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेट हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें पीपल के कंपोनेंट को एलिमिनेट किया गया है या मिनिमाइज किया गया है। हमारी ऑटोमेशन, जिस पर हमने डिस्कस किया था कि ऑटोमेशन में हमारे क्या है, ऑटोमेटिंग एलिमेंट में हमारे सेल, टेकिंग ऑर्डर, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, ये हमारे इकोनॉमिक सेंस पैदा करती है। ये इंटरनेट की एक हमारे पास फैसिलिटी है जिसको हम ऑटोमेशन में ला सकते हैं, और ह्यूमन बाज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। आफ्टर ऑल, इस बुक की मैं आपको सेंस बता दूं, वो ये है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेकिंग बिजनेस डिसीजन बेस्ड ऑन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर एंड बिकमिंग मोर कस्टमर सेंट्रिक। और अब यहाँ से आपको लिंक दूंगा चैप्टर नंबर 2 का, कि चैप्टर नंबर 2 में हमने 2 चीजें डिस्कस की थी। एक चीज तो इसमें ये थी कि कस्टमर सेंटर्ड और प्रोडक्ट सेंटर्ड था। ये आपको याद होगा कि सेकंड चैप्टर में हमने दोनों डेफिनेशन को लिया था। सेकंड चैप्टर में हमने क्या किया था, प्रोडक्ट सेंटर्ड कंपनी क्या होती है, इज वन दैट मेक्स प्लान एंड डिसीजन बेस्ड ऑन द इंटरनल पर्सपेक्टिव। ये हमारा इंटरनल पर्सपेक्टिव पे जो बेस करता है वो प्रोडक्ट सेंटर्ड। और इसी तरह हमारे पास जो कस्टमर सेंटर्ड कंपनी थी, हैज अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, making plans and decision based on the anticipated impact on the customer। ये हमने 2 कॉन्सेप्ट लिए थे। अगर आप सेकंड चैप्टर में मूव करें तो फिर आप इसको वहां देख लीजिएगा, वहां इसकी बहुत सारी डिटेल भी आपने पढ़ी है, आपको ये रिवीजन करने में भी आसानी होगी कि हम सेकंड चैप्टर को भी इसके साथ लिंक किया है। तो अब हमारे पास ये टॉपिक था कि डिलीवरिंग सीआरएम ऑन एंड ऑफ, इसी में हमने ज़िमन में कुछ दूसरे चैप्टर की बात की है। तो डेफिनेशन ऑफ सीआरएम एंड ईसीआरएम, पहले तो मैं आपको जुडत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देता हूँ, फिर इसको कुछ डिफरेंशिएशन है वो, फिर इसकी जो हर्डल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जो इसका लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं ईसीआरएम हैज एग्जैक्टली द सेम डेफिनेशन एज ट्रेडिशनल सीआरएम। जैसे हमने इंटरनेट के टॉपिक में डिस्कस करके पहले चैप्टर में ये कहा था कि द बेसिक्स आर स्टिल काउंट, बेसिक्स वही रहेंगे। सिमिलरली सीआरएम और ईसीआरएम में हमने ये बात कर रहे हैं। ECRM has exactly the same definition as traditional CRM. The strategic use of information, technology, process, and people to manage the customer relationship with your company across the whole customer life cycle। ये हमने बात डेफिनेशन में पढ़ी थी, और ये हमारी वर्किंग डेफिनेशन है। इसी को हम लिंक करते चले जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन एक बात हमारे पास नोट करने के लिए ये है, द टेक्नोलॉजी इज न्यू बट द बेसिक रूल्स आर द सेम। जैसे हमने इंटरनेट में बात की थी कि सीआरएम और ईसीआरएम में हमारे पास क्या चीज है कि इसमें हमारा ऑनलाइन का एक एलिमेंट है, या आप इसको दूसरे तरीके से यूं समझे, इट्स important to remember that just like traditional CRM, ECRM is not a silver button। देखो, सिल्वर बटन नहीं हमारे पास कि दे दिया गया और सारा कुछ है। पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये सीआरएम की प्रोसीजरल अप्रोच है, एंड अप्रोच नहीं है। स्लोली हम विंस द रेस की तरफ चलते हैं कि हम प्रोग्राम्स को करते जाते हैं इम्प्लीमेंट, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं होता कि हम सीआरएम को इम्प्लीमेंट कर दें और अगले दिन उठ के जो कस्टमर जो है ना हमारे साथ सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाए। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। CRM is not a silver button. As we know, you cannot hire a consultant or go to the store and buy the solution to all your problems। आप ये मत समझिएगा कि हम किस स्टोर पे जाएंगे और अपने सारे सॉल्यूशंस ले आएंगे। ये टाइम टेकिंग चीज है जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसके कुछ डिफरेंसेस भी आप यहाँ देख लेंगे और कुछ इसकी हर्डल्स भी हैं, आप उसको भी देख लेंगे। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इंटरनेट जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, तो इसमें हमारे पास विद इन नो टाइम ये नहीं होता कि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाए। तो अब इसको देख लें, डेफिनेशन ऑफ सीआरएम, ईसीआरएम हमने इसको कह दिया कि सिंपली ये हमारे पास इसके इंटरनेट की, और ये बात भी नोट करनी चाहिए कि इंटरनेट जो हमारे पास की फैसिलिटी है वो हमें प्रोवाइड करती है फैसिलिटी फॉर द कस्टमर टू इंटरेक्ट विद द ऑनलाइन इन द ऑनलाइन मीडियम। ये हमारे पास एक मीडियम है, जैसे हमारे पास टच पॉइंट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो यहाँ से भी इसको देखने, सीआरएम इज अ स्ट्रेटजी बाय व्हिच कंपनीज ऑप्टिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेंट्रिक बिजनेस प्रोसेस ऑफ सेल, मार्केटिंग एंड सर्विस।
या आप इस नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए कि ECRM इज अ कस्टमर फोकस मैनेजमेंट ऑफ द होल ई बिजनेस रिलेशनशिप विद ईच कस्टमर इन ऑर्डर टू जनरेट ग्रेटर पॉजिटिव लाइफ टाइम वैल्यू। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें कि रियल डिफरेंस क्या है इनका। ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन को हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको समझना चाहिए कि ऑटोमेशन क्या है। और फिर हमारी इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हमारे पास मैनर, पर्सनैलिटी और इमोशंस हैं। इसको भी आप टेक्नोलॉजी के टॉपिक में डिटेल में देख सकते हैं। और पीपल, ये 4 चीजें तो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये इसकी डेफिनेशन में है। देन हमारे पास ये लास्ट टॉपिक जो है वो बिजनेस कॉन्सेप्ट का है। जो जो 5 चीजें इनको डिस्कस कर लेते हैं ECRM और CRM के जिम्मन में। हमारे पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल CRM में हमारे पास कस्टमर इन्फॉर्मेशन है। ऑफ कोर्स ECRM में भी हमारे पास कस्टमर इन्फॉर्मेशन है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में CRM इंटरेक्शन है, और यहाँ हमारे पास ऑनलाइन इंटरेक्शन हैं। और एनर्जी एंड पावर में हमारे पास पीपल हैं, और वहाँ इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट में हमारे पास ECRM में CRM टेक्नोलॉजी, और वहाँ इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। और प्रोडक्ट में हमारे पास इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप एंड लॉयल्टी, एंड ECRM में इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप एंड लॉयल्टी। ये बात। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप इनकी हर्डल्स को देखिएगा कि रिकॉग्नाइजिंग बैरियर टू इंटरनेट अडॉप्शन, कस्टमर कॉन्फिडेंस, कस्टमर ट्रस्ट एंड लेजिस्लेशन। ट्रस्ट को हम हमेशा से ही डिफाइन करते आए हैं कि हमने एक दफा आपको एक लिखवाया था क्लास में कि CRM इज ऑल अबाउट कस्टमर, कस्टमर इज ऑल अबाउट लॉयल्टी, एंड लॉयल्टी इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। और ट्रस्ट हमारा क्या है, इसको बहुत सारी रिसर्च में मॉडरेटिंग वेरिएबल के तौर पे रिसर्च की जा रही है। जब आपका ट्रस्ट हाई है तो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हाई। इनको हम डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। कस्टमर कॉन्फिडेंस, ये बैरियर है, ये क्या है। while many customers are to shop online, many are not। कुछ कस्टमर चाह रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई है, और कुछ कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं है इसमें कि हम ऑनलाइन परचेजिंग करें या ना करें। तो कस्टमर कंसर्न इसमें क्या है, द प्रोसेस सीम अनफैमिलियर एंड कंफ्यूज्ड। इसमें चीज है कि लोग समझते हैं अभी जैसे अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ लोग अभी तक जो ना कंफ्यूज हैं कि ये चूंकि हमने तो ऑफलाइन में एडमिशन लिया था, ऑनलाइन में एडमिशन नहीं लिया, तो ये क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी अनफैमिलियर थी, फिर आपने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और इसी तरह आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, आइडियाज की, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आपके साथ जब ऑनलाइन जा रहे हैं तो अनफैमिलियर भी हैं और कंफ्यूज भी हैं। और उसके लिए स्ट्रेटजी क्या डेवलप करनी है, डिजाइन एंड बिल्ड योर ECRM सो दे आर सिंपल, हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। तो इसको ये बनाना है। तो इसके कमेंट्स में ऑथर कह रहे हैं कि ट्राई टू मिमिक योर बेस्ट ऑफलाइन सर्विस टू ऑनलाइन। कि आप जो ऑफलाइन सर्विस हम कस्टमर को दे रहे हैं वो फील उनको हो कि ऑनलाइन भी इसी तरह उनका ट्रैक चल रहा है। जैसे आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन देखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आप कस्टमर के विजिट भी कम हो गए हैं, और वो इंटरेक्शन है, कस्टमर टच पॉइंट है, जैसे ATM है। तो सिमिलरली जैसे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब तो बहुत सारी मशीन ऐसी आ चुकी हैं। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आप जाएं तो वहाँ आपको एक मशीन मिलेगी, आप चेक इसमें सबमिट करवा रहे हैं, अमाउंट लिख रहे हैं, तो वो चेक भी आपका ऑनलाइन मशीन के थ्रू जो है वो सबमिट हो जाता है। तो इसी तरह नो रियल पर्सन इज देयर टू आंसर क्वेश्चन। उसमें ये होता है, कस्टमर का कंसर्न ये है कि वहाँ कोई नहीं है, फिर उसमें हम क्या करेंगे। ह्यूमन के इंटरेक्शन के लिए सच एज कॉल सेंटर, डायरेक्ट लिंक फॉर फ्रॉम वेबसाइट, इस तरह की हम स्ट्रेटेजी उसमें अपना सकते हैं। तो इसी तरह सिंप्लीफाई योर ऑनलाइन प्रोडक्ट एंड कंपेयर योर प्रैक्टिसेस विद कंपेटिटर्स, यूं कर सकते हैं। तो थर्ड कंसर्न ये है कंज्यूमर का, इंटरेक्शन कैन बी ओल्ड और अनफ्रेंडली, ये होता है। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या है, मेक योर की मैनेजर विजिट योर वेबसाइट एंड एक्ट लाइक कस्टमर फॉर अ डे, दिस विल क्रिएट एम्पैथी एंड यू गेट द रिक्वायर्ड इंटरनल सपोर्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा बैरियर है वो है कस्टमर ट्रस्ट। कस्टमर ट्रस्ट की हमने रिसर्च की बात की है, उसकी डेफिनेशन की बात की है। कस्टमर डज नॉट ट्रस्ट एज विद अस, या आप यूं इसको कहें, कस्टमर डज नॉट ट्रस्ट अस विद देयर डेटा स्पेशली ऑनलाइन। कस्टमर का ये कंसर्न है कि हमारी ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है,
क्रेडिट कार्ड है और उसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन करते हैं, या हम किसी अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो हमारा ये कंसर्न होता है कि हमारा कहीं डाटा जो है वो मिस ना हो जाए, लीक ना हो जाए, हमारा डाटा जो है वो किसी के दूसरे के हाथ ना चला जाए। तो ये हमारा कंसर्न होता है कस्टमर ट्रस्ट का। अगर हम इसको हाई कर दें तो कस्टमर की ऑनलाइन परचेजिंग जो है ना वो हाई हो जाएगी। जैसे हमारे सिक्योरिटी एसेंशियल्स हैं एंड्रॉइड की टेक्नोलॉजी में, हमारे पास है कि आईफोन ने बहुत सारे एसेंशियल लगाए हैं कि क्यों हम प्रोडक्ट खरीदते हैं कि वो डाटा जो है ना वो कहीं मिस नहीं हो सकता। तो इसलिए ट्रस्ट में हमें प्राइवेसी पहला कंसर्न चलें देख लें। इंटरनेट ओपननेस मेक इट हार्ड टू फील सिक्योर। इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी के चीजों को डिस्कस किया जा रहा है ट्रस्ट में। सेकंड आप देख लें, इंटरनेट प्राइवेसी इशू गेट मोर पॉपुलर इजीली। कस्टमर डू नॉट नो अबाउट रियल डेंजर। तो ये इसमें बहुत सारे कंसर्न है ट्रस्ट में। और उसकी स्ट्रेटजी में क्या है, डू नॉट आस्क व्हाट एंड डू नॉट नीड, बी स्पेसिफिक, क्लैरिफाई व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट, यूज कंसिस्टेंट टर्म एंड लैंग्वेज। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कवर कर सकते हैं और कस्टमर को ट्रस्ट में ला सकते हैं। और बहुत सारे ऑथर्स की इसमें सजेशंस हैं कि जब तक हमारा कस्टमर ट्रस्ट हाई नहीं होता तो हम ऑनलाइन परचेज की तरफ लोगों को नहीं ले जा सकते। आप भी सोचें, अगर आपको ये रिस्क हो कि हम ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेशनल ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और हमारी जो पेमेंट है या हमारी इंफॉर्मेशन है तो वो किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी, तो हम वो परचेज नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड वन है वो लेजिस्लेशन है। सम लेजिस्लेशन थ्रेटन द इंटरनेट्स एबिलिटी टू ग्रो एंड मीडियम फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस। लेजिस्लेशन में हमारे साथ बहुत सारी कस्टमर का कंसर्न है। पहला कंसर्न तो उसका ये है, लेजिस्लेशन में लिमिट द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कलेक्टेड ऑनलाइन एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड। थर्ड वन, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन नेगेटिवली अफेक्ट सेल। फिर उसकी स्ट्रेटजी में क्या आता है, मेक योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। वो रजिस्ट्रेशन में ही वही बात आ रही है कि उसकी स्ट्रेटजी पॉलिसी पार्ट ऑफ योर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। और सिमिलरली join and involve with the trade organization such as GMA। और कमेंट्स में आप इसको देख लीजिएगा। use your privacy policy to support your brand image and build trust। The DMA lobbies for open market and limited privacy regulation। तो ये हमारे 3 बैरियर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो इस चैप्टर को आप रीड कीजिएगा और इसको मजीद डेप्थ में पढ़ने के लिए आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इनके कॉन्सेप्ट को भी इसके साथ मैच कीजिएगा, तो आपको ये 4 चैप्टर होपफुली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक असाइनमेंट भी आपने हर चैप्टर की समरी जो है ना वो भी जमा करवानी है इंशाल्लाह। वो भी जीआर के थ्रू आपके यहाँ मेरे पास सिस्टम पे आ जाएगी। तो जो लोग असाइनमेंट्स कंप्यूटर पे उनके फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न है कि हम आपको फैसिलिटेट करें, को आप हैंड रिटन करके उनको पीडीएफ में शेयर करके भेज दें। कोई इशू नहीं है कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टैब नहीं है, सिस्टम पे आप कंप्यूटर पे इसका सेलफोन पे नहीं लिख सकते, तो आप इसको दूसरे तरीके से भेज दें। और हम इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज रहे हैं और इसको भी भेज देंगे इंशाल्लाह। और पिछले लेक्चर जो है वो मैंने भेजे हैं व्हाट्सएप पे भी इंशाल्लाह आपको शेयर कर देंगे और इस लेक्चर को भी शेयर कर देंगे। और बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन। और आप लोगों की जो डिसिप्लिन है ऑनलाइन क्लासेस में, अल्लाह का शुक्र है वो भी बहुत अच्छा है, आपकी अटेंडेंस भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल अप्रिसिएशन भी पंजाब यूनिवर्सिटी के 80 प्लस जो ना आपकी अटेंडेंस है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड इंशाल्लाह next class we will start chapter number 5। So thank you very much for your attention and for your cooperation। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh।